Dear students, today's topic is explain the principal construction and working of Van de Graaff generator. Very important to question. First is introduction of Van de Graaff generator. Introduction. Van de Graaff generator. Very important to question. Van de Graaff generator is a device. It is a device which is used to generate very high potential difference. Very high potential difference of the order of 8 to 10 million volts, of the order of 8 to 20 million volts. Van de Graaff generator is a device which is used to generate very high potential difference of the order of 8 to 20 million volts. This high potential difference is used to accelerate. This high potential difference is used to accelerate the charged particles. Charged particles like positive charges, negative charges, ions, etc. to carry out the various experiments in nuclear physics. Various experiments in nuclear physics. Van de Graaff generator was designed by Van de Graaff in 1931. This is the introduction of Van de Graaff generator. Once again, I will repeat it. Van de Graaff generator is a device which is used to generate very high potential difference of the order of 8 to 20 million volts. This high potential difference is used to accelerate the charged particles like positive charges, negative charges, ions, etc. to carry out various experiments in nuclear physics. This device was designed by Van de Graaff generator in 1931. ये जो वैन de Graaff जनरेटर है, ये एक्चुअल में एक ऐसा डिवाइस है जो बना सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस बना सकता है. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल सकते हैं. वेरी हाई वोल्टेज बना सकता है. कितनी ऑर्डर का 8 to 20 मिलियन वोल्ट्स की वोल्टेज जनरेट कर सकता है. ये वेरी हाई वोल्टेज किस काम आती है? टू एक्सेलरेट चार्जड पार्टिकल्स. ये जो वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे हम चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं. चार्जड पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आयन हो सकता है, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो. इनको एक्सेलरेट करके किसी टारगेट पर हिट कराते हैं तो ताकि वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के वो स्टार्ट हो जाए. हमारा मेन एम है वैन de Graaff जनरेटर में ये चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराता है, फिर टारगेट पर हिट कराता है. टारगेट पर जो ही ये चार्जड पार्टिकल्स हिट हो गए, एक्सपेरिमेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टार्ट हो जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट वैन de Graaff generator. Van de Graaff generator is a device which is used to generate very high potential difference of the order of 8 to 20 million volts. This high potential difference is used to accelerate
the charged particles like positive charges, negative charges, ions, etc. to carry out various experiments in nuclear physics. This generator was designed by Van de Graaff. That is why it is called the Van de Graaff generator, because the designer of this generator is Van de Graaff in 1931. This is the introduction part of Van de Graaff generator. Now, the second part is principle of this generator. What is the principle of this generator? Second part of this generator is principle. Very important part of this question. First is, it is based upon the principle of corona discharge. Corona discharge. ये कोरोना जो डिजीज है आज, वो कोरोना नहीं है. दिस इज कोरोना डिस्चार्ज. Corona discharge, first part of the generator on which it based is, first part of the principle is Van de Graaff generator is based upon the principle of corona discharge. What is this corona discharge? I will explain it. Corona discharge, it is actually the phenomenon of spraying of charge, from sharp edges of a conductor is called corona discharge. What is corona discharge? corona discharge है अगर sharp edge होगा, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर आप लोग देखते हो त्रिशूल जैसे लगे होते हैं, उनके शार्प एजेस होते हैं. इन शार्प एजेस से हम चार्जेस की स्प्रे कर सकते हैं. चार्जेस स्प्रे की शेप में निकलते हैं, जैसे एक परफ्यूम की बोतल में से एक स्प्रे निकलती है. इसी तरीके से शार्प एजेस जो कंडक्टर के होते हैं, वहां से एक स्प्रे निकलती है चार्जेस की. वहां से स्प्रे निकलती है एक चार्जेस की, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज. व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? द स्प्रेइंग ऑफ चार्जेस, स्प्रेइंग ऑफ चार्ज फ्रॉम शार्प एजेस of a conductor is called corona discharge. What is corona discharge? The spraying of charge from sharp edges is called corona discharge. First principle on which Van de Graaff generator is based is, it is based on the principle of corona discharge. What is corona discharge? The phenomenon of spraying of charge from sharp edges of a conductor is called corona discharge. It is the first principle on which Van de Graaff generator is based. Second principle is, it is based upon the principle of that charge can be transferred. Charge can be transferred from one surface to the other, other surface, and gets accumulated on it. दो प्रिंसिपल है जिन पर वैन डी ग्राफ जनरेटर बेस करता है. फर्स्ट मैंने आप लोग बताया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज. सेकंड प्रिंसिपल इज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस. चार्ज हम इस सरफेस से ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे सरफेस पर, और एंड कैन एक्युमुलेटेड ऑन इट. यहां से ट्रांसफर करके चार्ज हम दूसरे साइड कर सकते हैं, और दूसरे साइड पर हम एक्युमुलेशन चार्ज की कर सकते हैं. दो प्रिंसिपल आप लोगों को जुबानी याद रखनी है. वैन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज.
Second, it is based upon the principle that charge can be transferred from one surface to other surface and gets accumulated on it. These are the two principles on which वैन डी ग्रॉफ जनरेटर बेस्ड, वैन डी ग्रॉफ जनरेटर इज बेस्ड। दोनों प्रिंसिपल आप लोगों को यूज करने हैं वर्किंग में, और आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से दोनों प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। Third part of this question is construction. Very important part of this question is construction. Now, third part of the question is construction. Construction, very important part. डायग्राम को सीख लीजिए बनाना। A Van de Graaff generator mainly consists of two pillars. ये दो पिलर बनाने हमें। These two pillars are made up of, these two pillars are made up of concrete or bricks. ये दो पिलर है P1 and P2. These two pillars are made up of concrete or bricks. Over these two pillars there is a spherical metallic sheet S. ये दो पिलर है which are made up of concrete or bricks P1 and P2. Over these two pillars there is a spherical metallic sheet S. Between these two pillars there is a pulley. There is a pulley P1 dash and P2 dash. Over this pulley there is a movable belt. This belt is moving with the help of a motor which is fitted inside the generator. फिर से बताता हूं, दो पुलीज है, एक पुली यहां पर है, एक पुली यहां पर है। इस पुली का नाम रख दीजिए P1 डैश, इसको नाम रख दीजिए P2 डैश। ओवर दीज टू पुलीज दिस इज द पिलर। ये दो पुलीज है P1 डैश एंड P2 डैश। ओवर दीज पुलीज देयर इज ए मूवेबल बेल्ट। दिस बेल्ट इज मेड अप ऑफ सिलिक और रियान। सिलिक का बना होता है और रियान का बना होता है या रबर का बना होता है। ये जो बेल्ट इन पुलीज के ऊपर घूमता है, तीन में से एक चीज का बना होता है, दैट इज सिलिक और रियान और रबर। देन देयर इज ए हाई टेंशन बैटरी। दिस इज हाई टेंशन बैटरी। This is high tension battery. The positive terminal of the high tension battery is connected with a COM B1. This COM and other terminal of the battery is connected with the earth. This B1 is called spring COM. This is called spring COM. There is another belt. There is another COM. This COM is called B2 and this COM is called collecting COM. This is called collecting COM. There are two COMs B1 and B2. B1 COM is called spring COM. इसको spring COM क्यों बोलते हैं? ये स्प्रे चार्ज की करेगा। B2 is called the collecting COM. ये इसका काम है चार्जेस को कलेक्ट करना। यहां पर है there is an I-shaped. There is an I-shaped, long I-shaped narrow tube
आई शेप का नैरो ट्यूब होता है। इस एंड पर, इस ट्यूब के अंदर एक आयन सोर्स है जो पॉजिटिव आयंस को एमिट करेगा, एंड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब कंसिस्ट द टारगेट। यहां पर टारगेट लगा है और इस टारगेट पर हम हिट कराएंगे पॉजिटिव आयंस को ताकि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाए। एंड द whole instrument is enclosed. Whole instrument is enclosed in a steel chamber. Steel chamber. This steel chamber is filled with nitrogen or मीथेन गैस। मीथेन गैस, ये पूरा स्टील का चैम्बर नाइट्रोजन या मीथेन गैस से भरा हुआ है। लिसन द कंस्ट्रक्शन। A Van de Graaff generator mainly consists of two pillars P1 and P2. These two pillars are made up of concrete or bricks. Over these two pillars there is a spherical metallic sheet S. There are two pulleys P1 dash and P2 dash. Over these two pulleys there is a movable belt. This belt is made up of slick, rayon or rubber. There are two combs B1 and B2. Comb B1 is called the spraying comb. The function of the spraying comb is to spray the charges on the belt. The another comb is collecting comb. The main function of the collecting comb is to collect the charges. There is an I-shaped long tube. One end of the tube consists ion source. Other end of the tube consists target. The whole generator is enclosed in a steel chamber. This steel chamber is filled with nitrogen or methane gas as is shown in figure A. This is all about Van de Graaff generator. Now the last part of this generator is working. वर्किंग समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है B1 कॉम के साथ। B1 कॉम इधर देख लीजिए, कॉम के शार्प एजेस होते हैं। इस कॉम के शार्प एजेस है, ये स्प्रे करेगा चार्जेस बेल्ट पर। तो द स्प्रेइंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ दिस कॉम्ब इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसका मतलब ये स्प्रे कॉम्ब कोरोना डिस्चार्ज करता है, स्प्रे करता है चार्जेस की किस पर, बेल्ट पर। तो लेकिन ये बेल्ट मूवेबल है, ऊपर नीचे घूमता रहता है, ऊपर की तरफ घूमता है और इधर से वापस आता है, ऐसे घूमता है। इसका मतलब जो चार्जेस इस पर आ गए ये ऊपर ऊपर चलेंगे, क्योंकि बेल्ट ऊपर ऊपर चलता है, घूम के चलता है ऐसे। जब ये बेल्ट ऊपर चलेंगे, चार्जेस यहां पर पहुंच गए। ये मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 कॉम्ब्स के पास पहुंच गए। ये 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस करेंगे। ये 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस करेंगे कॉम्ब्स पर। ये 3 नेगेटिव चार्जेस 3 पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस करेंगे आउटर सरफेस पर। इसका मतलब चार्ज फ्रॉम वन सरफेस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर सरफेस। चार्ज हमने इनर साइड से आउटर साइड पर ट्रांसफर कर दिया। ये दूसरा प्रिंसिपल है। दोनों प्रिंसिपल्स यहां पर ओबे हो रहे हैं। चार्ज कैन स्प्रिंग चार्ज की यहां पर होते हैं, जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। चार्ज यहां से ट्रांसफर होता है आउटर साइड से, ये दूसरा प्रिंसिपल है।
दोनों प्रिंसिपल्स यहां पर ओके हो रहे हैं। अब मैं फिर से बताता हूं, जब स्प्रे काम ने स्प्रे की चार्जेस की, ये चार्जेस ऊपर ऊपर चलेंगे ऐसे। जब कलेक्टिंग कॉम के पास पहुंच गए, यही पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस कराएंगे तीन नेगेटिव चार्जेस। तीन नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करेंगे आउटर साइड पर तीन पॉजिटिव चार्जेस। मगर एट द सेम टाइम दीज थ्री पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज, इनका इफेक्ट खत्म हो गया। तो इसका मतलब हो गया तीन पॉजिटिव चार्जेस और ऊपर आएंगे, तीन पॉजिटिव चार्जेस और ऊपर आएंगे, तीन नेगेटिव चार्जेस और इंड्यूस हो जाएंगे, तीन पॉजिटिव चार्जेस और एक्यूमुलेट हो जाएंगे आउटर साइड ऑफ द बेल्ट पर। इसका मतलब यहां से चार्जेस आ रहे हैं, यहां से बेल्ट खाली आ रहा है। अब ये चार्जेस गए कहां? इन्होंने इंड्यूस किए यहां पर चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, उन नेगेटिव चार्जेस ने इंड्यूस किए आउटर साइड पर चार्जेस। इसका और साथ साथ में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। न्यूट्रलाइज इफेक्ट जो चार्जेस का है वो खत्म हो रहा। तो इसका मतलब है चार्जेस ऊपर ऊपर आ रहे हैं, चार्जेस साथ साथ में एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, साथ साथ में न्यूट्रलाइजेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब जितने जितने चार्जेस ऊपर होते जाएंगे, चार्जेस ट्रांसफर होते जाएंगे, एक्यूमुलेशन चार्जेस का होता जाएगा। किस पर? मेटालिक शीट पर। एक्यूमुलेशन तब तक होता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। यहां से स्प्रे हो रही है चार्जेस की, यहां पर इंडक्शन हो रहा है चार्जेस का, और वही चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल शीट, एंड एट द सेम टाइम दीज चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द बेल्ट विल मूव एम्प्टी। ये यहां से खाली बेल्ट आएगा, सिर्फ चार्जेस ये ऊपर लेगा, इनके इंड्यूस कराएगा चार्जेस, वो इंड्यूस कराएगा आउटर साइड पर। इस तरह आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल शीट पर एक्यूमुलेशन चार्जेस का होता रहेगा। जितने जितने चार्जेस यहां से ऊपर चले जाएंगे, उतना उतना इस पर एक्यूमुलेशन होता जाएगा। At one stage, when the accumulation of the charge on the spherical sheet is very high, जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्फेरिकल शीट पर बहुत ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है 10 रेज पावर 8 to 10 रेज पावर 20 वोल्ट्स, मिलियन वोल्ट्स, 8 to 20 मिलियन वोल्ट्स इसका पोटेंशियल बन जाता है। जब 8 to 20 मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल बन गया, उस वक्त आयन सोर्स से आयन्स को निकाला जाता है, आयन सोर्स से आयन्स को निकाला जाता है। जो ही ये आयन्स निकल गए, इस पॉजिटिव पोटेंशियल में ये तेजी से भागेंगे। इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये बहुत तेजी से भागेंगे किस में? एक्सेलरेट किस में करेंगे? इस नैरो ट्यूब में। इस नैरो ट्यूब में ये एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि वेरी हाई पोटेंशियल है। तो जब इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो गए और एक्सेलरेट करके ये नैरो ट्यूब में ये आयन्स, पॉजिटिव आयन्स किसके साथ स्ट्राइक करेंगे? टारगेट के साथ। जो ही इन्होंने टारगेट के साथ स्ट्राइक किया, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के, वो स्टार्ट होते हैं। This is the working of Van de Graaff generator. Now, why this generator is filled with nitrogen or methane gas? अगर हम इसको स्टील चैम्बर में, यहां स्टील चैम्बर के बगैर रखेंगे, इस पर चार्ज बनता है 8 to 20 मिलियन वोल्ट्स। वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस बनती है 8 to 20 मिलियन वोल्ट्स। जो एयर है, इसमें अगर एयर होता, एयर आयोनाइज हो जाता है 3 मिलियन वोल्ट्स पर। 3 मिलियन वोल्ट्स पर एयर आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब अगर एयर रखेंगे वो तो आयोनाइज होगा। आयोनाइज का मतलब है ब्रेक्स इनटू आयन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अगर इसमें एयर होगा वो आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने से चार्जेस बन जाएंगे और
ये चार्ज लीक हो जाएगा। लीकेज ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इफ नाइट्रोजन और मीथेन गैस इज रिप्लेस्ड बाय एयर। उस वक्त आयोनाइजेशन हो जाएगी, आयोनाइजेशन से लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा और उस वक्त जो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज है ऑन द मेटालिक शीट वो कंप्लीटली नहीं हो जाएगा। इसलिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, पूरे अपैरेटस में नाइट्रोजन और मीथेन गैस भरा जाता है जो आयोनाइज नहीं होता है इस पोटेंशियल पर। दैट इज व्हाई this Van de Graaff generator is filled with nitrogen or methane gas to minimize the leakage of the charges from the spherical metallic sheet. This is all about Van de Graaff generator.